में भी आएंगे और इतने सालों से आप लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत तरीका से। इलामा को तो बात ही छोड़िए, 50 साल चिन्मय मिशन में सेवा दे रहे हैं। पिल्लाई अम्मा भी इतना सालों से पूजा की कर्म कर रहे हैं, एकदम परफेक्ट विधि से। तो we didn't have Swamiji for 4 years. So somebody had to know. That is, yes, when Swamiji was not there, then I am worried. so if we know the impact of the puja, then it will be wonderful. तो मुझे आज लगा कि कुछ मंत्र को मैं एक्सप्लेन करूं जो हमारा नहीं होता है, क्योंकि हमारे घर में पंडित जी आते हैं और हम लोग ऐसे ट्रेडिशनली ये बैठो और आप लोग सब थैली लेके बैठते हैं और इधर पैसा दो, इधर पैसा दो, इधर करो। मैंने कभी आप लोगों के घर में आप लोग पूजा में बुलाते हैं तो देखा, तो मुझे लगा उसमें कोई एतराज नहीं। मुझे सिर्फ लगा कि whatever you are doing, you should know why I am doing what I am doing. तो it will be wonderful. जैसे सब लोग तो आम खाते हैं, लेकिन जब कोई दे रहा है कि स्वामी जी ये अल्फांसो है, so when we came to know that it is, so our mindset gets absolutely in a different plane, that yes, I am having this. So in case of puja also, when you will do at your home, at your mission, or by your own self, you should know what you are doing, what is actually puja, why that mantras are. See, पूज धातु से पूजा आता है, and the same meaning is bhaj. So puja and bhajana, maybe they are coming from different roots, but their meaning is almost same. But Bhaj Sevayam. Bhaj means seva. So first, you have to know what type of karma it is. There are several types of karma. As we know in our Shastriya Vidhi, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, then प्रायश्चित्त कर्म, काम्य कर्म, we know it. Then regarding the result of the karma, we are having prarabdha karma, sanchita karma, agami karma. Another sorts of karmas are there, that is kahika karma, vachika karma, manasik karma. The grossest form of karma in case of performance, that is puja, seva. तीर्थ, तपस्या, मतलब जो कृच्छ साधन करते हैं। उपवास 2 प्रकार की होता है, मतलब 3 प्रकार के भी आप सोच सकते हैं, कायिक, मानसिक और वाचिक। दान, दक्षिणा, ये सब उस कर्म के अंदर, पूजा के अंदर आता है। मतलब
कायिक कर्म, and it should be Shastra Prasiddha. The karmas should be Shastra Prasiddha. What that Shastra Prasiddha karma? It is nothing but the prescription of the Shastra, what they have preached for us, written for us. That if I come to the Upavas, this is Kahika, that I am not having anything else. Manasika means Vachika, that I am chanting something else. That today I have taken the vow that on the day of Upavasa, I will chant 108 times Hanuman Chalisa or this. Then, what is Manasika Karma? उपवास की मतलब फास्टिंग नहीं. हमारे शास्त्र ने कभी बताया नहीं कि उपवास की मतलब फास्टिंग है. In different religions, they absolutely call it fasting. But our upavas means upavasati iti upavasa. Upa means near. In Kathopanishad, Shankara Bhashya, Bhagwan Shankaracharya ji, first when he is starting his Bhashya, it is written what is the meaning of Upanishad, and Upa means near. Kiske near? For whom I am doing the everything else, my mind will be always fixed to that person. It is not that I will not eat anything else for the entire day. In the Vedic time, it was not there. After that, when the Vedic period went off, Pauranic time came. Then also our Shastrakara never mentioned that he will not eat anything else. 5 things were exempted. That phala, mula, jala, dugdha, oshadhi. That 5 things you can eat. Sometimes you must eat if you are sick. Jala, mula, phala, dugdha and oshadhi. Clear? So it is not in our religion that after sunset I will not eat anything else. Then even my saliva also I will not take. Then after Suryasta, then whatever like you can eat, and you are firing as if you are waiting when I will get the time to eat. And there are nowadays media is very active, so people keep party, that breaking fasting party, and क्या नहीं रहते उधर. This is hypocrisy, absolute hypocrisy. जो भी करो मन उसमें लगा के रहो. यही हमारे सनातन शास्त्र, सनातन धर्म की एसेंस है. कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस. एवरी टाइम कॉन्शियसनेस. उपवास के दिन ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का है. तो यू हैव टू बी कॉन्शियस. अगले रात से मन को बोलो कल मौन रखना है. हे मन,
तुम्हें कल पूरा दिन मौन रहना है. If anything else comes that you have to speak, you have to act, arrest your mind before acting. Not arrest your acting, because acting is the final stage. First it comes in our mind, then we think, sankalpa, vikalpa, then we take decision, then activities. इतना सारे होता है इतना कम समय में. समय की वैल्यू आप छोटा करके मत देखिए. मैंने कभी कभी बोलता हूँ कि ये हम लोग जो पिक्चर खींचते हैं ना, डू यू नो व्हाट इज द टाइम स्पैन? आप लोग कभी कैमरा सेटिंग्स में जाकर देखिए, जहाँ पर कैमरा हो रहा है वहाँ पर शटर स्पीड है. जो आप लोग जैसे महंगा फोन यूज करते हैं उसमें सेटिंग्स में देखिए 1/125 शटर स्पीड, 1/250 शटर स्पीड. आप लोग शायद देखा नहीं. इसका मतलब जो फोटो खींचते हैं ना, 1 सेकेंड की 125 भाग की एक भाग में फोटो उठते हैं. और ये सिर्फ मोबाइल फोन में नहीं, हमारे इनके भी पुराने जमाने में भी जो पहले कैमरा आया था उसके सिवा फोटो ही नहीं होगा. आप पहले जो ऐसे कैमरा था ना, जो स्माइल थोड़ा ऐसे करो, उसके पहले और पूरा माथा ढक के, उस जमाने का आप लोग भी नहीं ऐसा है. तो दिस इज द फैक्ट दैट whenever we used to take any picture, the maximum time, this is the maximum time we used to get, that the 1/25th moment of 1 second, that was the maximum time, and in between you have to compose everything else. So समय इतना ही मूल्यवान है. So what I mean to say, you have to be conscious every day. अगर एक दिन चालू कर सकते हैं ना, so you can continue it for your life. जहाँ एक दिन तो हो गया, चलो आज बहुत आनंद आ रहा है. मौनता की इतना शक्ति है, इतना पावर है ना, you can't imagine. By the grace of Guru, once I practiced it for 2.5 months. It's not that years after years, 2.5 months. One time I practiced 41 days. In Gujarat, there is one place. Still now it is there. If anybody wants to go, you can go. 41 days sadhana. You are not allowed to take anything else. ना आपके इष्ट का फोटो, मोबाइल फोन तो बहुत दूर की बात है. No किताब also. Only you alone with your clothes. There is a small gap down the doors. 3 times they will give you food. ऐसे करके आपका खाना हो गया. यह एक सिर्फ घर है, उसमें कुछ नहीं है. आपकी जप की माला भी अलाउड नहीं है. So this is the just being sadhana, you know. Now you just think of it. So this is the self introspection that, और इतना ताकत आता है ना मन की, सिर्फ वो नहीं. You will get some different sort of strength. ऐसे व्यक्ति के मुंह से जो निकल आते हैं ना, भगवान उनको पूरा करने के लिए भाग दौड़ करते हैं. भाई ये व्यक्ति ये बोल दिया है, मुझे ये करना ही पड़ेगा. आप लोग कोशिश करके देखिए एक बार. 40 दिन की मैं नहीं बोल रहा, एक दिन के लिए, आधा दिन के लिए. मैं आ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता.
स्वामी जी वो जो इगतपुरी में है विपासना, वहाँ 10 दिन मौन रहने का कुछ पता ही नहीं चलता है, फोन भी नहीं रहता है, किसी से आंख भी नहीं मिला है। चश्मा नहीं लेते थे। तो बहुत अच्छा लगा था वहाँ, एकदम कुछ नहीं इगतपुरी में तो उनका हेडक्वार्टर है, वहीं गए थे। इधर कलकत्ता में सोदपुर में है। नहीं, मैं इगतपुरी में गई थी। अच्छा, वो तो आप हेडक्वार्टर में गए थे। इधर सोदपुर में है, और एक है ये जो पाक सर्कस आनंद पालित रोड में एक बुद्ध टेम्पल है, उधर बोधि ज्योति भिक्षु बोल के एक सन्यासी है, बौद्ध सन्यासी। वो मुझे बहुत प्रेम करते, एक बार मिलने के लिए भी आए थे उन्होंने। तो बोधि ज्योति भिक्षु उधर भी विपासना अरेंज करते आपके घर के नजदीक फॉर 10 डेज। लेकिन उधर एक चीज रहते हैं, आपके पास गोयंका जी का लेक्चर आपको सुनना पड़ता है, मीन्स सम एक्सटर्नल सपोर्ट इज देयर। आप लोग खाना खाने जाते हैं, शायद आप किसी से बात नहीं करते लेकिन देखते तो है, लेकिन यू जस्ट थिंक यू आर इन अ टोटली confined room in a ventilation, रिमोट रूम। remote room. वो एक्सरसाइज करते Nothing. Just be. Actually, you can't imagine it if you don't start to practice it. एक बार कोशिश करो। I will tell you to try for 15 minutes. Just 15 minutes. आप देखेंगे कि आप जो बोलते हैं ना, जे इतना परिश्रम होता है, आपके संसार में रहते रहते मेरा हड्डी में काली पड़ गया है, मैं तो अब कभी नहीं आऊंगा। आपके संसार में इतना काम करना पड़ता है। देखो उधर मिसेस बजोरिया कुछ नहीं करते, उनका बहू आ गया, मेरा हालत देखो, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। वो व्यक्ति को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार 15 मिनट बैठ के देखो, कितना सब कुछ का जरूरत है, कितना ताकत, मन की ताकत की कितना जरूरत है। आप हंसेंगे मेरे बात पर। I tell you, try it for 1 minute. मैं इस पथ में चल चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बोल सकता हूँ, try it for 1 minute. Will you try Yes. right now? Yes. Yes. 1. देखिए, निर्गुण निराकार is not possible, so we have to go through sagun sakar. So I will lead you to that, from sagun sakar to nirgun nirakar. There is a manasika mantra. I will chant first, I will explain you, and we will try to meditate upon it afterwards. I will guide you. Okay. This is called guided meditation, and it is possible. See, this is the Acharya Parampara. I will do for it. So, this is the mantra. First listen. See the vibration of the mantra. Om
पद्मनाशनं दद्यात् सहस्रारच्युतामृतै पाद्यं चरणयोर्दद्यात् मनस्तर्घ्यं निवेदयेत् तेनामृतेना च मन्यं स्नानियं तेन च स्मृतम् आकाशतत्त्वं वस्त्रं स्यात् गन्धः स्यात् गन्धतत्त्वकम् चित्तं प्रकल्पयेत् पुष्पं धूपं प्राणान् प्रकल्पयेत् तेजस्तत्त्वं च दीपार्थं नैवेद्यं सत्सुधाम्बुधे अनाहतधनिर्घण्टा वायुतत्त्वं च चामरं सहस्रारं भवेच्छत्रं सप्ततत्त्वं च गीतकं नृत्यमिन्द्रियचाञ्चल्यं चाञ्चल्यं मनसस्तथा सुमेखलां पद्ममालां पुष्पं नानाविधौ तथा दयापुष्पम् अमायदैर्भावपुष्पैः अर्चयेत् भावगोचरम् अमायम् अनहङ्कारम् अरागम् अमदं तथा अमोहकम् अदम्भं च अद्वेष अध्यक्षौ तथा अमात्सर्यं लोभं च दशपुष्पं विधुर्बुधाः अहिंसा परमं पुष्पं पुष्पमिन्द्रियनिग्रह दया पुष्पं क्षमा पुष्पं ज्ञानपुष्पं च पंचमम् इति पंचदशैः भावपुष्पैः संपूजयेत् शिवम्. This is Manasika Puja. When you will start meditation, meditation means एक हो जाना. ध्येय, ध्याता और ध्यान कर्म एक हो जाने का नाम ही ध्यान है. ध्येय मतलब who is meditating. Dhyata means upon whom you are meditating, and the action, the karma is dhyanam. When it becomes in single line, it comes in a single line, that is our laksha. Dhyanam means the offering of love. You know, it is only possible if you can inculcate love. In our common mind, love means some worldly love, that I love something else. It may be a person. पूरा जगत ही ऐसे चल रहा है. I love you and something else. But the thing is, कितना तक? What is the value of this love? Now in Vrihadaranya Upanishad, there is a famous mantra, Nava Are Sarvasya Kamaya Sarvam Priyam Bhavatu Atmanastu Kamaya Sarvam Priyam Bhavatu. The person is lovable to me, it's not because the person is lovable. It satisfies my ego, my demand, my emotion, my sentiments, everything else. When everything gets satisfied by any person, by any situation, by any ambience, by any vastu, I tell, oh, I love you so much. When from that person constantly my ego will be hurt, my demand, my physical, mental, social, financial, economic, not anything will be satisfied, you will check yourself. You can't say I love you. Because what we have named as love
it is only based upon giving and taking. But the love I am talking about, that you have to inculcate love for your supreme, your deity. It is the love one way, which love doesn't want anything else in return. That is the actual thing I'm talking about. So, what about the thing I'm talking about? What the love we have to inculcate? The only one thing you have to inculcate. There is an example. One great saint started taking test of his student, very beloved student, that शिष्य ऐसे नहीं होता है, शिष्य ऐसे नहीं होता है। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, लेकिन शिष्य मतलब जो अपने तन मन धन सब कुछ एक जगह पर दे सकते हैं, समर्पण कर सकते हैं। ये बात है समर्पण की। और वो कैसे होगा? Whenever you can inculcate that sort of love, that I don't want anything else, there is only love is remain. तो वो गुरु उनका परीक्षा लेना चालू किया। वो आते थे, सबके साथ बात करते थे, लेकिन उस अपने शिष्य के साथ बात नहीं करते। और कभी वो आ रहे हैं दूर से, उनका मुंह नहीं देखेगा। सब लोग बैठे हुए हैं, सबको प्रसाद दे रहे हैं, उनको नहीं। ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन करते करते 1 महीना से ज्यादा हो गया, और गुरु अपना हार स्वीकार कर लिया। अपने शिष्य की प्रेम ऐसे देखकर गुरु पूछने लगा, मैं तुझे थोड़ा सा भी केयर नहीं करते, प्रायोरिटी नहीं देते, तेरे साथ बात नहीं करते, तेरा मुंह तक नहीं देखते, फिर भी why do you come to me every day? Only one answer he gave, because I love you. That is the love. I don't want anything else in return. मुझे प्रेम करने में खुशी होता है। I don't need that तुम अब मुझे देखकर मुस्कुराओ। I don't need इतना तक। Once Swami Chinmayananda ji was asked, पहले कोर्स 5 साल की होता था, क्योंकि our पूज्य गुरुदेव could not finish the course in due time, because he had to travel a lot. और बच्चा लोग उधर कोई उपाचार्य रख के वो पढ़ाते थे। Mainly स्वामी दयानंद जी used to help him. और वो कोर्स खत्म होने में 5 साल लग जाता था। तो एक दिन हुआ क्या, जब कोर्स खत्म हुआ और उससे पहले कि आप गुरुदेव, आप तो एक भी पैसा हम लोगों से नहीं लिया, खाना पीना वस्त्र, why are you doing so? गुरुदेव चुप हो गए। बहुत बार जब पूछने लगा, गुरुदेव एक ही शब्द बोला, I love you. And the student asked him, what do you want from us in return? गुरुदेव बोला, बाजार में कभी मिलजुल हुआ तो एक बार मुस्कुरा देना, और क्या। Gurudev even did not want that
that brahmachari will stay at ashram and he will serve. ऐसे कोई कंडीशन भी नहीं, आज भी नहीं रखते. That's why Chinmay Mission is having shortage of swamis and brahmacharis. This is the only reason, because when they offer course, they never put a condition that in return you have to serve the mission. So इसलिए हमारे समय भी 100 ब्रह्मचारी ज्वाइन किए थे. 100 में से we only 8 got this yellow. उसमें भी अभी 6-7 ही है. So this is the percentage. In our time I have seen, see, that is the greatness of our Chinmay mission. That एक स्वामी जी उधर ब्रह्मचारी थे, संन्यास भी हुआ था, बाद में उन्होंने चिन्मय मिशन छोड़कर अपना संस्था खोला. उधर भी उन्होंने पढ़ाई रहा है. तो इन आवर टाइम आई कैन रिमेम्बर, सो ही केम टू विजिट हिज गुरुक्षेत्र. So why I am telling the greatness of Chinmay mission, because there are several missions. बहुत बड़ा बड़ा मशहूर मिशन है. आप एक बार मिशन छोड़ देंगे ना तो मिशन वाला मुंह तक नहीं देखते. I know that. उन्होंने आया, उनके लिए हमारे स्वामी लोग जहाँ पर बैठते उधर बैठ के हम लोग उनको हमारा ऑर्डर आया कि उनको सेवा कर. वो हमारा पुराना स्टूडेंट है, यहाँ से ही संन्यास मिला था. Really believe me, because I was on that time from a different mission. I could not control my tear that how great is this mission. I have noticed कि उनको थोड़ा सा भी असम्मान नहीं किया कि भाई तुम हमारे इधर से सारे सुविधा लेकर अपने संस्था खुला, क्यों इधर आया. उनको बिठा के खिलाया पिलाया, उनको रूम दिया, एंड ही स्टेड देयर फॉर 3 days. सो ऐसे ग्रेट मिशन की छत्र छाया में हम लोग हैं, और गुरुदेव जैसे इतना प्रेम हम लोगों को मिला. एंड स्टिल इफ यू फील इट इज नथिंग बट द रिजल्ट ऑफ हिज, कैन यू लव, कैन यू अंडरस्टैंड. Outside may be more than 40-degree temperature and we can't feel anything else. आराम से हम लोग सत्संग सुन रहा हूँ, आराम से हम लोग आनंद ले रहा हूँ. And this is only out of the grace of Gurudev. मैं क्यों ये बोलना चाहता हूँ, आप जिन्होंने भी इस संघ में है, कोई सेवक के रूप में, कोई बहुत सारे कोई है तो जो दायित्व निभाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं. वी शुड ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज आवर आदर्श. गुरुदेव इज आवर आदर्श. कितना प्रेम था हमारे उन गुरुदेव में. सो लव, रेस्पेक्ट, यू नो, दिस इज द बेसिस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग कभी भूल ना जाए कि हमारे संस्था की अस्तित्व प्रेम से टिका हुआ है. नियम बाद में आता है, प्रेम जोड़ते हैं, नियम नहीं. एक ही ईंटा से, एक ही सीमेंट से ना ब्रिज भी बनता है और वॉल भी बनता है. आपने कभी ख्याल किया? ब्रिज 2 किनारे को जोड़ देते हैं और वॉल भाई भाई को बांट देते हैं, बाप बेटा को बांट देता है. So always because I am telling it to me, because I am here. मेरा जो पोस्ट मिला, believe me, I tell every day and night to me कि दिवाकर तेरा मन में घमंड ना आ जाए, सेवा करने के लिए आए. उसमें भी शॉर्ट फॉलिंग होता है, हम लोग मनुष्य हैं,
लेकिन हाउ क्विकली यू कैन कम बैक, दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर तपस्या। देखिए गुस्सा आ सकता है सिचुएशन, क्योंकि हमारे प्रारब्ध, हमारे संस्कार ऐसे है, कुछ भी आ सकता है। थोड़ा समय के लिए हम लोग भूल सकते हैं, लेकिन तपस्या की ताकत ऐसा है ना कि हम लोगों को तुरंत कम बैक करने में सुविधा कर देती है कि अरे क्या कर रहे हो, यू आर ए साधका, यू आर ए साधिका, ये न शोभते, ये आपको शोभा नहीं देता, ये कामना आप क्यों कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, ऐसे क्रोध आप क्यों कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता, आपके वाक्य से किसी का आघात हुआ, कष्ट हुआ, ये आप क्यों किया, तुरंत ना सिर झुक जाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी पोजीशन सब छोड़ के फोन लगा लेता है कि अम्मा मेरा गलती हो गया, मुझे माफ कर दो, शायद मेरा वाक्य से आपका दुख हुआ। ऐसे हुआ मेरे जीवन में भी। अब किसी को पूछ सकते, किसी को बहुत डांट दिया, मेरा डांटने का स्वभाव है, लेकिन मैं फोन कर लेता हूँ, अम्मा आपको कष्ट तो नहीं हुआ, आई एम सॉरी। तो because how I get that strength when I study Gurudev's life, when I study nowadays Guruji's, इतना प्रेम, प्रेम की घन मूर्ति, उनका मूर्ति को देखिए, ऐसे ये जैसे कि निर्गुण निराकार प्रेम एक सगुण साकार रूप लेकर हमारे सामने खड़ा है। अगर वही हमारा आदर्श है, हम कैसे विरूप कर्म कर सकते हैं? Is it not meditation? Never think that meditation is you have to sit like this, observe your breathing, then so hum, close your eyes. No, we are the student of Vedanta. Our meditation is 24/7. Our meditation is, there is no holidays. There is every day is holy day. 24/7 meditation. I don't know whether you will believe me or not. I am meditating now. And somehow you are also meditating that you don't know. We are conscious or not. Meditation means constant consciousness. Constant, consciousness. Constant, निरंतर। जब खाना पकाएंगे ना, you should know where is your hand, there should be your mind. What I am doing? अब मेरा चरित्र अगर सुनेंगे, कोई बोलते हैं ना स्वामी जी देखिए ना सब्जी काटते से वक्त मेरा कट गया और इतना खून बहा, मैंने जिंदगी में किसी को नहीं बताया हाँ क्या हुआ, मैं तुरंत डांटने लगता हूँ। विश्वास कीजिए, कैसे कटा ये पहले बताओ। यू आर नॉट कॉन्शियस, बी कॉन्शियस। आप लोग जितना भी लोग मुझे आज तक फोन किया कि स्वामी जी मैं गिर गया, मैं ये ऐसे बंदा है, पूछिए, मैं कभी एक शब्द नहीं बताया हाँ बहुत कष्ट। मैं बोला कैसे हुआ अम्मा, हाउ यू लॉस्ट योर कॉन्शियसनेस। इफ यू लूज योर कॉन्शियसनेस यू कुड नॉट हैव यू नो व्हाट हॉस्पिटल के पास This is the essence of meditation we should learn. जी खाना नहीं बना रहे, you are meditation, you are doing meditation, you are meditating. और अगर आप भक्त है तो और सुविधा है। जी मैं भगवान के लिए खाना बना रहा हूं,
खाने के समय भक्त को डुअल प्ले करना पड़ता है। एक तो अपने सामने जो मूर्ति है उसको ऑफर करना पड़ता है, और जो मूर्ति अंदर बैठे हुए हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानं समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। तो ऐसे तैसे नहीं, भगवान को दे दे करके, तब आपके मन से लोभ भी चला जाएगा। वी आर ऑफरिंग भगवान। तो ऐसे कॉन्शियस रहना पड़ता था। वंस आई वॉज इन अ मिशन, जब मेरा ड्यूटी हुआ था भगवान की पूजा के लिए फूल तोड़ना। Believe me, how that duty was. At 3:30 in the morning, I had to get up. पूरा सिर्फ आंख खुला रहता था, ऐसे ढकना पड़ता था कि बाल ना गिर जाए। नाक भी ढकना पड़ता था कि फूल का खुशबू मेरे नाक में ना चला है, मेरा सांस प्रश्वास उसमें ना जाए, मेरा सलाइवा शुड नॉट गो, वो शरीर में भी नहीं आए, ऐसे करके। और हमारे हाथ में, एक हाथ में टॉर्च रहता था और इधर से ये बास्केट ऐसे करके जो हैंडल वाला होता है ना, ऐसे घूमता था। एंड यू कैन इमेजिन, कभी कभार भूल होता तो 7 बजे हमारा कॉल आता था कि आज तुम ऐसे करके ये किया, मतलब उधर हमें देखने के लिए भी कोई था। हाँ सच में। और हाँ, यस, नॉट दिस मिशन। फूल में कीड़ा नहीं रहेगा, एकदम फ्रेश। और रात को 3:30 बजे, हाँ, क्योंकि हमारे सत्संग खत्म होता था 11 बजे। आप सोने का टाइम कितना मिल रहा है? You just tell me how much time you are getting for your enough rest. उस समय आपको दिमाग को कितना कॉन्शियस रखना पड़ेगा कि what you are doing, कि प्रभु के लिए आप फूल तोड़ रहे हैं, फूल चुन रहे हैं। That was meditation. That should be your puja. Once one sannyasi was the secretary, a trustee secretary of another mission. And his 50 years routine was, in the evening after Aarti, he will sit for his japa for 2 hours. Then the bell ring will be there for dinner, and he will go for dinner. 50 years. जब वो बूढ़ा हो गया था तो उनका सेवक था, तो सेवक सब जगह उनके साथ जाते थे। एक बार आश्रम में संध्या आरती के बाद ही मीटिंग रखना पड़ा, कोई मुसीबत आ गया था। एंड ही अटेंडेड द मीटिंग फॉर 2 hours, देन घंटा हुआ, घंटा बजने लगा, मीटिंग खत्म हुआ। उन्होंने सेवक को बोला, मेरा डिनर की इंतजाम करो। सेवक का मुंह ऐसा हो गया, क्या देख रहा हूँ, मीटिंग के चक्कर में, काम के चक्कर में ये अपना 50 साल की रोटी भी तोड़ रहा है। तो उनका मुंह में ऐसे देखकर उन्होंने सवाल पूछा, क्या तुम्हारा मन में प्रश्न है? मैं, स्वामी जी आज आप मेडिटेशन नहीं करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, तो मैं ये 2 घंटे से क्या कर रहा था?
That should be the attitude and aptitude of our life. जो कर्म आपको करना है वो करना ही पड़ेगा। एक स्वामी एक स्कूल की हेडमास्टर थे और एक बच्चे के बारे में ना इतना रिपोर्टिंग हर रोज आते थे कि ये सारे बच्चा को एकदम इतना तंग करते थे, पूरा स्कूल में तबाह मचा के रखते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको पकड़ के लाया और ऐसे उन्होंने हरकत किया कि स्वामी जी क्या करेगा, उसके सामने छतरी था, छतरी लेकर उनको पीटने लगा। जाओ अभी उनको घर भेज दो। भेज दिया। उस स्वामी जी ने छतरी रखते रखते अपने गुरुदेव का फोटो था और इष्ट बोलो, रोते रोते प्रार्थना किया कि भगवान आज तुम्हें छाता से पूजा किया, स्वीकार करो। That should be the attitude of a sadhaka's life. You have to do puja at your every bit of time. जब सत्संग में बैठेंगे ना, ये आपका पूजा है। अब मन को बोलो यही मेरी पूजा, यही मेरी बंदेगी। पूजा करने के समय मैंने देखा, बहुत घर में गया, ए मालती ओम त्र्यंबकम जजा, मैं सुना त्र्यंबकम जजामहे, मालती दूध दे, दूध उबाल ना जाए। ये मैंने देखा, ये बात नहीं कि मैं सुन के बोल रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप संसार नहीं करेंगे। यू प्लान योर लाइफ, प्लान योर वर्क एंड वर्क आउट योर प्लान। हमारे गुरुदेव बोलते जीवन में भी एक प्लान होना चाहिए कि ऐसे करेंगे कि पूजा की आधा घंटा हो, 15 मिनट हो, 1 घंटा हो, ऐसी मैं घर में नहीं हूं। दूध उबालना, जितना कुछ करना खत्म करके करो, और नहीं तो बाद में जो समय जो काम करना चाहिए मैं वही करूंगा, यही पूजा है। मैं खाना बनाने के समय पूजा कैसे हुआ इसके बारे में मैं चिंतन नहीं करूंगा, पर पूजा करने के समय खाना और क्या क्या सोच रहा, ऐसे नहीं चलेगा। एटलीस्ट ये तो मन को मेकअप करो जी, अभी करना है, टाइम जा रहा है अम्मा, टाइम नजदीक है। अजरामरविप्राज्यम विद्यामर्थं च चित्तये गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मामचरे। जब आप धर्मचारण करेंगे ना, यू शुड थिंक कि यमराज हमारे केश पकड़ के रखा है, कब उठा के लेके जाएगा मुझे पता भी नहीं। I should perform each and everything. गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्मामचरे। 5 मिनट का आप लोग जो सोचते हैं वो आंख बंद करने वाला भी मेरे से हो जाए मेडिटेशन। चलिए sit in a relaxed position. It's not that you have to be very stiff. Sit in a relaxed position. हम लोग एक बार 3 बार ओम बोलूंगा, उसके बाद मैं कुछ बोलूंगा और एक स्टेप ओम बोलूंगा। Be conscious. सावधानी अभी
Observe your breathing. मन में चिंतन करो, हमारा भगवान, हमारे गुरुदेव, जिनका जो लगे हृदय में बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हुए हैं? मेरा मुंह जिस तरह एकदम उसी तरह है। रीत पद्मासनम दत्या, हमारे हृदय में उनका आसन है। सहस्रार शुदा, और झरना है, जिस झरना में अमृत की धारा है, और उस अमृतम कहाँ से आ रहे हैं? हमारे सहस्रार से, from the inside portion of our crown, there is the fountain of nectar. The space inside me, that is the vastra of my Ishtadeva. मेरा चित्त है, जहाँ पर मेमोरी है, स्टोर होता है। जो कुछ मन में आ रहा है, वो मैं भगवान की पूजा करूंगा। मेरे अंदर जो भगवान है, थोड़ा टाइम पहले ही मैंने बताया था, जब मेरा फूल तोड़ने का ड्यूटी था, कौन कौन फूल मुझे तोड़ना पड़ता था। कीड़ा लगा हुआ फूल भगवान की पूजा में नहीं लगता। कीड़ा लगा हुआ मेमोरी, जो मुझे दुख दिया, जो दूसरों को दुख दिया, ऐसे फूल नहीं चलेगा। अगर स्मृति रोमंथन करना ही है तो अच्छा चीज का रोमंथन करो और भगवान को समर्पण करो। ये सब कुछ आपके लिए हुआ। भगवान की पूजा में धूप की जरूरत है। हमारे जो प्राण वायु है, जो पंच भाग में विभक्त है, 5 भाग में, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, यही धूप है। 5 धूप मैं भगवान को समर्पण कर रहा हूं। इस भगवान को पूजा करने के लिए 15 प्रकार की फूल की जरूरत है। एक फूल के नाम है अकाम। अकाम मतलब मेरा कोई कामना वासना नहीं, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है। भगवान के आशीर्वाद में मुझे बहुत कुछ मिला। जो मिला मैं उसमें संतुष्ट हूँ। किसी के बारे में मेरा शोक नहीं,
किसी के लिए मेरा एक्स्ट्रा अनुराग भी नहीं। भगवान को अर्पण करो दया पुष्प, क्षमा पुष्प, ज्ञान पुष्प। भगवान ये लो तेरा ज्ञान, ये लो तेरा ज्ञान, ये लो तेरा अच्छा, ये लो तेरा बुरा। मुझे ऐसे कर दो कि मेरे मन में शुद्धा भक्ति आ जाए। जिस मन में अगर चाहत है तो तेरा ही चाहत है। मेरे जीवन में ऐसे कोई चाहत मत दो जिस चाहत में तेरा चाहत खत्म हो जाएगा। जे तृषा जागेले तोमारे हराओ, तृषायामा जगायो ना। मेरे जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति मत दो, कोई घटना मत दो, कोई वस्तु मत दो जिसे मिलने से मैं सिर्फ उनको लेकर ही मशगूल हो जाऊंगा और तुम्हें भूल जाऊंगा। भगवान त्वमेव माता, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु, त्वमेव सखा, त्वमेव मित्र, त्वमेव सर्वम्। You alone my mother, you alone my father, you alone my friend, my bosom friend, my best friend. You alone, you alone. तुम हमारा अस्तित्व है। अस्तित्व को कैसे समझेंगे? जैसे हम लोग पहले 3 बार ओम उच्चारण किया, अ उ म, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अगर मैं आपसे पानी मांगूंगा तो आप पानी कैसे ले आएंगे? गिलास की जरूरत है। गिलास पानी का आधार है। ओम की आधार क्या है? दोनों ओम के बीच में जो साइलेंस है वही ओम की आधार है। कोशिश कीजिए। कितने बार बोल रहे हैं, सशांति अधिगच्छति। शांति क्या है? ये शांति है दोनों ओम के बीच में जो नीरवता है, जिसे लग रहा है कि void है। That is the absolute शांतता। That is Advaitam, that is Kevalam, that is Jnanam, that is Brahman, that you alone, जिनके अंदर ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति खेल रहे हैं, वही ज्ञान आपको
Hare